Hello children, welcome to lecture 5 of Maths chapter 2 Polynomials. Today we are going to study factorization and also we will cover questions 4 and 5 of exercise 2.4. So let's begin with factorization. Factorization is not a new term for you all. You have already done it in your previous class 8. So what do you mean by factorization and how will you do it? So factorization means we can write any number or any expression as product of its factors. Means if we can write any expression in the form of product of its factors, it is called as factorization. In your previous class, you did many methods for factorization like grouping, taking the common term out, using the identities, and one method was splitting the middle term. So here today we are going to discuss this method, splitting of middle term. Now let's first recapitulate what you have already done, then we'll go one step up. So in your previous class, you were given questions in the form x square plus lx plus m, right? So what you used to do? You used to split this middle term lx via two factors a and b such that the product of ab is equal to your constant term. I repeat, what you used to do? You used to split this middle term via two factors a and b such that their product a and b product is equal to the constant term m, and you got at the end two factors x plus a and x plus b. But here in this class you will be given a different type of expression. What is that? ax square plus bx plus c. Now what is the difference between the previous expression and this expression? As you can notice, in the previous expression the coefficient of x square was 1, and here in this expression coefficient of x square is a, which is greater than 1, suppose. Now what shall we do? We'll do similar thing that we used to do earlier, means we have to split this middle term, and the factors that we will take should be their product should be equal not only to c but to ac. AC means a and c. That means, I again repeat, the coefficient of x square, that is a, and the constant term c, first we will find out their product of AC. AC again I am telling, coefficient of x square and your constant term. First we will find out the product of AC, that is AC. Now we will find out factors of AC, and then among those factors we will choose two factors whose sum is equal to b. Okay, now this will be more clear to you with the following example. Let's suppose you have to factorize the polynomial 6x square plus 17x plus 5. Now I told you just now, since it is having 6 as a coefficient of x square, so first you will find the product of AC. Product of AC will be 6 into 5. 6 is your A, 5 is your C, so 6 into 5 is 30. Now the factors of 30 are 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30 also. Now you want two factors such that their sum is equal to 17 and product is equal to 30. And as we can see, two factors 2 and 15. Among these all factors 2 and 15 are the two factors whose sum is equal to 17 and product is equal to 30. 2 plus 15, 17, and 2 into 15, 30. So what shall I do? I'll select these two factors 2 and 15. Now what to do? I'll keep this first term as such 6x square, because this is what? Splitting of middle term. So I'll split the middle term 17x as
15x plus 2 is 2x because our chosen two factors are 2 and 15. हमने यही दोनों चूज किए हैं, तो हम इसकी फॉर्म में अपनी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, और ये जो स्प्लिटेड टर्म है हमने यहाँ लिख दिया. बाकी सब कुछ सेम है. द फर्स्ट टर्म इज सेम, द लास्ट टर्म इज सेम. नाउ व्हाट शैल वी डू? वी विल टेक आउट द terms, numbers common. Like here x square and x, what is common? X, so x we'll take out. 6 and 15 both come in table of 3, so we'll take out 3 common. So what is left? 6 divided by 3, 2, and x square divided by x, x, plus 15 divided by 3, 5, and x divided by x, 1. So what is left? 3x multiply 2x plus 5. Now 2x plus 5 is already here, so we will take out 1 common, and what is left here? 2x plus 5. Now in this 2x plus 5 we will take out 2x plus 5 common, and what is left? 3x plus 1. So these are the two factors of this particular polynomial. So children, likewise we have to do the questions of exercise 2.4. We will use this technique to factorize the polynomials. Let's see how. Exercise 2.4, question number 4, factorize. The polynomial which is given to you is quadratic. Quadratic means its degree is 2. 12x square minus 7x plus 1. As we can see, we have a here and c here, so first what we will do, we will find out the product AC, that is 12 into 1, 12. Now what are the factors of 12? 1, 2, 3, 4, 6, 12. And what we want is कि हमारे वो दो factors का product तो 12 हो और sum कितना हो? -7. ओके, तो ऐसे मुझे दो फैक्टर्स ये नज़र आ रहे हैं 3 और 4, क्योंकि -7 को हम -3 -4 लिख सकते हैं. तो हमारे दो चोजन फैक्टर्स क्या हो गए? 3 and 4. अब हमने क्या किया? बाकी सब कुछ सेम रखेंगे, सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे. तो 12x स्क्वायर -3x -4x प्लस 1. अब कॉमन निकाल लो. ये दोनों में क्या कॉमन है? 3, और x स्क्वायर और x में x कॉमन है. व्हाट इज लेफ्ट? 12 डिवाइडेड बाय 3, 4. x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 3x, 1. यहाँ पर ऑलरेडी 4x प्लस 1 है, तो -1 कॉमन निकाल लेंगे, तो 4x -1 आ जाएगा. बिकॉज माइनस साइन बाहर है तो अंदर ब्रैकेट के साइंस चेंज हो जाएंगे. अब दोनों 4x -1 4x -1 को बाहर निकालिए. व्हाट इज लेफ्ट? 3x -1. सो दीज टू आर दी फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल. Similarly, second part, 3x square minus x minus 4. Again, first we will find out the product AC. AC is what? A is 3 and C is what? 4. C हमारा constant term होता है और A हमारा coefficient होता है x square का. तो हमने देखा क्या है हमारा प्रोडक्ट? 12. अगेन 12 के फैक्टर्स यहाँ मैंने लिख दिए सब. अब हमें चूज़ करना है कि हमारा प्रोडक्ट तो 12 आए, लेकिन सम कितना आए? यहाँ पे क्या है हमारी मिडिल टर्म? -x. -x मीन्स -1x. तो ऐसे दो फैक्टर्स कौन से दिखाई दे रहे हैं मुझे? 4 और 3, क्योंकि 4 - 3 इज 1 एंड 4 3 are 12. तो 4 3 are 12 एंड 4 - 1 is 1. बट यहाँ पे हमारी मिडिल टर्म का साइन क्या है? माइनस. तो हमारे को एक माइनस इंटीजर चाहिए और एक प्लस इंटीजर चाहिए. तो क्योंकि हमारी मिडिल टर्म का साइन माइनस है, तो हम जो ग्रेटर नंबर होगा उसका साइन माइनस रखेंगे और स्मॉलर जो नंबर है उसका साइन प्लस रखेंगे. बिकॉज वी नो दैट इन माइनस प्लस जो आंसर का साइन होता है वो हमेशा बिगर नंबर का साइन होता है. तो -4x प्लस 3x. व्हाट वी हैव टू डू नाउ? 3x स्क्वायर, ये हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को. -4x प्लस 3x -4. कॉमन निकाल लो. यहाँ दोनों में क्या कॉमन है? x. तो यहाँ बचा 3x -4. ऑलरेडी 3x -4 है, तो +1 बाहर निकाल लिया, 3x -4. अब यहाँ दोनों में से 3x -4 कॉमन निकाल लिया. व्हाट इज लेफ्ट? x + 1. सो दीज टू आर दी फैक्टर्स. नाउ इस क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट्स हैं. two parts I have solved for you, and rest of the 2 parts are these which I have left for you. Now you will do these 3rd and 4th part yourself for your self evaluation. Then only you will get to know कि आपको कितना समझ आया है. आपको यहाँ पर मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ. पहले आप AC निकालेंगे, दैट वुड बी 2 3. 2 3 are 6. 6 के फैक्टर्स देखना, और फिर ये देखना कि ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सम +7 हो और प्रोडक्ट 6 हो.
यहाँ पर आप AC का प्रोडक्ट निकालेंगे तो AC हो जाएगा 6 इंटू 6 36। 36 के फैक्टर्स देखना, ठीक है, और ऐसे 2 फैक्टर्स चूज करना जिनका सम +5 होना चाहिए और प्रोडक्ट 36। ऐसे 2 फैक्टर्स जो होंगे वो आपका एक प्लस में आएगा एक माइनस में, लेकिन यहाँ पे आपका मिडिल साइन टर्म का साइन प्लस है तो आप बिगर फैक्टर को प्लस बनाना और स्मॉलर फैक्टर को माइनस बनाना। गॉट इट? क्योंकि आप प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका आंसर माइनस आ रहा है यहाँ पर, तो आप ये तो हमें कंफर्म हो गया कि एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मिडिल टर्म का साइन है वो प्लस है, प्रोडक्ट का साइन माइनस है, तो ये कंफर्म है कि एक फैक्टर प्लस है एक फैक्टर माइनस है, लेकिन जो बिगर फैक्टर है वो प्लस होगा बिकॉज मिडिल टर्म का साइन प्लस है। गॉट इट? सो डू दीज 2 पार्ट्स योरसेल्फ। नाउ कम टू द थर्ड question number 5. Now this is also something different for you. Factorization of cubic polynomials. Now just a reminder, ये कौन सा polynomial था? डिग्री इसकी क्या है? 2। तो कौन सा polynomial है? quadratic। और quadratic polynomial के कितने factors आए? 2 factors। अब हम क्या करने जा रहे हैं? cubic polynomial। cubic polynomial की डिग्री क्या होती है? 3। तो इसके टोटल कितने फैक्टर्स होंगे? यस, 3। टोटल वी हैव 3 फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट? अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कैसे करें? हम स्प्लिट करें। जैसे एक एग्जांपल है ये x³ - 2x² - x + 2। स्प्लिट करने से भी नहीं होगा, कॉमन भी नहीं है, कुछ ग्रुपिंग से भी नहीं समझ आ रहा है कैसे करें, तो फिर क्या करें इसके लिए? इसके लिए बेसिकली एक ट्रायल मेथड है, ठीक है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई नो कि ये थोड़ा सा आपके लिए नया है तो आपको फर्स्ट पार्ट में समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप जैसे ही सेकेंड पार्ट देखेंगे बिकॉज ऑफ द रिपीटिशन ऑफ द स्टेप्स आपको वो क्लियर हो जाएगा। बाय द थर्ड टाइम एकदम क्लियर हो जाएगा, और फोर्थ पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है तो आप उसे खुद कर पाएंगे। सो लेट्स डू इट। सबसे पहला स्टेप है बाय ट्रायल मेथड फाइंड इट्स फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर। हम एक ट्रायल से हम पता लगाएंगे कि इसका फर्स्ट फैक्टर, कोई भी हमारे को पता है ये डिग्री 3 है तो 3 फैक्टर्स होंगे, तो उन 3 फैक्टर्स में से एक फैक्टर हम चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और उससे फिर ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ भी चूज़ कर लें, तो हमें वो वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेप क्या है? वेरीफाई इट बाय यूजिंग फैक्टर थियरम। फैक्टर थियरम को यूज़ करके हम वेरीफाई करेंगे कि जो फैक्टर हमने चूज़ किया है वाकई में वो इसका फैक्टर है भी या नहीं, ठीक है। मान लीजिए हमने चूज़ किया, वेरीफाई भी हो गया, फिर हम क्या करेंगे? अब बिकॉज वो उसका फैक्टर है तो हम जब इस पॉलिनोमियल को उस फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, ठीक है। तो जो हमें क्वोशिएंट मिलेगा उस डिवीजन से, वो क्वोशिएंट कैसा होगा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब इस फॉर्म में ax² + bx + c, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया। अब तो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक को तो फैक्टराइज करना आपको आता है, आपको स्प्लिट करना है जस्ट मिडिल टर्म को, और आपके रेस्ट 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। एक आपने ऑलरेडी निकाल लिया फर्स्ट स्टेप में, 2 आपके स्प्लिटिंग से आ गए, टोटल कितने हो गए? 3 फैक्टर्स। गॉट इट? अब चलिए एक पार्ट में आपको करके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल है x³ - 2x² - x + 2। तो सबसे पहले हम इसका ट्रायल मेथड से फर्स्ट फैक्टर निकालेंगे। सो बाय ट्रायल मेथड फाइंड फर्स्ट फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर को देखने के लिए हम इसकी कांस्टेंट टर्म को ऑब्जर्व करेंगे। इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है? 2। तो हम 2 के फैक्टर्स देखते हैं। 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 और 2, बिकॉज इट्स अ प्राइम नंबर, सो 1 और 2। तो इसका मतलब 1 तो होगा ही होगा इसका फैक्टर। तो मैंने मान लिया लेट x + 1 बी इट्स फर्स्ट फैक्टर। मैंने मान लिया कि x + 1 जो है, क्योंकि 1 इसका फैक्टर है 2 का, तो मैंने मान लिया x + 1 इसका पहला फैक्टर है, ठीक है। लेकिन अब ऐसे थोड़ी है कि मैं कुछ भी मान लूँ, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप है वेरीफाई। वेरीफाई करेंगे फैक्टर थियरम में। फैक्टर थियरम क्या है? हम पहले यहाँ x + 1 हमने अपना फैक्टर बनाया, तो इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। x + 1 = 0, x = -1। अब इस -1 को हम अपने इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर ये 0 आता है दैट मीन्स ये फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो मैंने क्या किया? -1 को पुट कर दिया। -1³ - 2 × -1² -1 + 2, मुझे क्या मिला? 0।
दैट मीन्स ये श्योर हो गया कि ये हमारा फैक्टर है। तो चलिए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का मुझे एक फैक्टर मिल गया जो कि है हमारा x प्लस 1। थर्ड स्टेप, अब ये कन्फर्म्ड है इसके फैक्टर है, तो अब मैं इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूंगी। रीज़न क्या है, उससे मुझे क्वाड्रेटिक कोशेंट मिलेगा। लेट्स सी हाउ। लॉन्ग डिवीजन की वीडियो मैंने बनाई है, थर्ड वीडियो आप देखिए अगर आपको लॉन्ग डिवीजन में कोई प्रॉब्लम है। x प्लस 1 से मैंने अपना ये पॉलिनोमियल डिवाइड किया। डिवीजन अब आपको आती है, आप देखिए। रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 आएगा क्योंकि वो फैक्टर है। तो मेरे को क्या क्वोशिएंट मिल रहा है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कैसा क्वोशिएंट है ये, क्वाड्रेटिक। अब मैं इसका स्प्लिट करके मिडिल टर्म दो फैक्टर्स इसके निकाल लूँगी। यहाँ पर तो बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो सिंपल मुझे 2 के फैक्टर्स देखने हैं सच दैट कि प्रोडक्ट 2 आए और सम -3 आए। तो ऐसे दो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 एंड 2, बिकॉज 1 इंटू 2 इज 2 एंड -1 एंड -2 इज -3। तो दो फैक्टर्स कौन से हो गए, 1 एंड 2, राइट, -1 एंड -2। ओके, सो अब मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, x स्क्वायर -1 -2 प्लस 2। यहाँ से x मेरा कॉमन आ गया, x माइनस 1, यहाँ मैंने -2 कॉमन निकाले, x माइनस 1, x माइनस 1 बाहर आ गया और बचा क्या, x माइनस 2। तो ये दो फैक्टर्स आ गए और एक प्रीवियसली हमने डिसाइड किया था x प्लस 1, तो टोटल हो गए x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 2। दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ द गिवन polynomial. I know children, it's little bit lengthy and little bit complicated, but it's okay. अगर आपको थोड़ा भी समझ आया है तो सेकेंड पार्ट करते करते आपको पूरा समझ आ जाएगा। चलिए लेट्स डू सेकेंड पार्ट। हमारा गिवन पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। जैसा कि मैंने कहा सबसे पहले हम ट्रायल मेथड से इसका फर्स्ट फैक्टर निकालेंगे। हम देख रहे हैं इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 5। तो फिर से मैंने मान लिया कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, मैंने मान लिया, फर्स्ट स्टेप ले लिया, x प्लस 1 इज अ फैक्टर। अब मुझे वेरीफाई करना है, कैसे करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख के मैं x की वैल्यू निकाल लिया मैंने -1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने -1 रखा, -1 क्यूब -3 इंटू -1 स्क्वायर -9 इंटू -1 -5 क्या आ रहा है, 0। तो ये कंफर्म हो गया कि ठीक है x प्लस 1 फैक्टर है। ना इस स्टेप पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये x प्लस 1 यहाँ पर मैं रखती और यहाँ 0 नहीं निकलता तो मैं क्या करती, फिर मैं मान के चलती कि x माइनस 1 फैक्टर है, मैं ये मान लेती, फिर सॉल्व करके देखती। नहीं बात बनती मेरी तो मैं मान लेती x प्लस 2 फैक्टर है, नहीं बात बनती तो मैं मान लेती x माइनस 2 फैक्टर है। थोड़ा सा ये ट्रायल मेथड लेना पड़ता है फर्स्ट फैक्टर के लिए, जनरली x प्लस 1 से हो ही जाता है। थर्ड स्टेप, मुझे x प्लस 1 से मैंने अपने गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया। रीज़न, मुझे क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक कोशेंट। मैंने डिविजन की तो रिमाइंडर 0 आया, सिंस इट इज़ अ फैक्टर मुझे क्वाड्रेटिक कोशेंट मिल गया। Now what will be the next step? Splitting of the middle term of this quadratic quotient. मैंने स्प्लिट किया, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, मुझे दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट -5 हो और सम -4 हो। ऐसे क्या होते हैं, 1 एंड 5, बिकॉज 1 5 इज अ 5। -4 करने के लिए -5 प्लस x, यानी कि बिकॉज ये माइनस है तो बड़ा वाला जो हमारा फैक्टर उसका साइन माइनस होगा, छोटे वाले का प्लस साइन, तो ये माइनस प्लस। अब मैंने इसे स्प्लिट कर दिया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, यहाँ x कॉमन निकालिए, x माइनस 5 बचा, यहाँ ऑलरेडी x माइनस 5 है तो 1 कॉमन निकाला, x माइनस 5 ये कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, x प्लस 1। दो फैक्टर्स आ गए और एक x प्लस 1 मैंने ऑलरेडी ट्रायल मेथड से ले रखा था, तो तीनों फैक्टर्स आ गए, x प्लस 1 एंड x माइनस 5। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 फैक्टर्स होते हैं हमारे तीनों निकल गए। थर्ड पार्ट, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो अब आप इस वक्त इसे पॉज करिए, पहले सारे स्टेप्स को रिवाइज करिए, उसके बाद आगे चलिएगा। फर्स्ट स्टेप ट्रायल मेथड से पहला निकाला, सेकेंड स्टेप वेरीफाई किया, थर्ड स्टेप डिवाइड किया, फोर्थ स्टेप स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कितने फैक्टर्स मिलेंगे आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में, 3। गॉट इट, नाउ स्टार्ट।
ट्रायल मेथड से हमने चेक किया हमारी कांस्टेंट टर्म 20 है। 20 के तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मान लीजिए मेरे को सबसे इजी लग रहा है, 2 बार मेरा ट्रायल बिल्कुल फिट भी हो गया है, मैंने x+1 ही ले लिया है इसका फर्स्ट फैक्टर। चलिए मैं इसको वेरीफाई करती हूँ। सेम x+1 इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू -1 रखी मैंने, अपने जहाँ जहाँ मेरा x है वहाँ वहाँ मैंने -1 रख दिया। तो -1 क्यूब प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, व्हाट आई एम सीइंग इज मुझे 0 मिल रहा है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि येस इट इज़ अ फैक्टर, ये फैक्टर है। तो पहला फैक्टर हो गया मेरा x+1 कंफर्म्ड। नेक्स्ट स्टेप, अब मैं x+1 से अपने गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दूंगी, रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 मिलेगा। उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे क्वाड्रेटिक कोशेंट मिल गया। नेक्स्ट स्टेप, इस क्वाड्रेटिक कोशेंट को मैं स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म करूंगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे 2 फैक्टर्स चाहिए जिनका सम 12 हो और प्रोडक्ट 20 हो। ऐसे 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं, 10 and 2, बिकॉज 10 2 is 20 एंड 10 + 2 is 12। बहुत ईजी है, यहाँ पे स्प्लिट किया, मुझे 2 फैक्टर्स मिल गए। तो फाइनल 3 फैक्टर्स वुड बी x+1 जो हमने अज्यूम किया था, x+2 एंड x+10। ओके चिल्ड्रन, आई होप टिल दिस पॉइंट दिस शुड बी क्लियर टू यू। अगर नहीं हुआ है तो आप फिर से इसे सुनिए एक बार और साथ के साथ करके देखिए, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो इसका 4th पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, 2y³ + y² - 2y - 1। इसे आप खुद करिए और तीनों फैक्टर्स निकालिए। इसके कितने फैक्टर्स होंगे, 3 फैक्टर्स। तो आप एक कोई एज्यूम करिए फैक्टर, उसको वेरीफाई करिए, फिर डिवाइड करिए, फिर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करिए। ओके चिल्ड्रन, सो थैंक यू फॉर नाउ। अब हमारी 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब सिर्फ हमारी एक एक्सरसाइज बची है 2.5 ऑफ दिस चैप्टर। 2.5 थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है, इसमें टोटल 16 क्वेश्चंस हैं एंड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो कि आपने पहले भी की हैं, लेकिन कुछ न्यू आइडेंटिटीज़ भी इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो अगले वीडियो में मैं पहले एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस करूंगी और उसके बाद 16 क्वेश्चंस हैं टोटल, तो हम हर एक लेक्चर में 3 to 4 क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे, ताकि आपको भी बर्डन नहीं लगेगा। थोड़ा थोड़ा करके आपका भी अच्छे से समझ आएगा आपको, और आप अपना काम भी ईजीली पूरा कर पाएंगे। ओके, सो स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।